ओम शांति। आज के बाबार 30/9/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महाबाक्य। आज बाबा पुरो मुरलीते विशेष एकटा ব্যাপারে अटेंशन আমাদেরকে দিচ্ছেন যে बच्चे তোমাদের আত্মার উপরে যে জন্ম জন্মান্তরের যে মলিনতা বিকারের যে মরচে পড়ে আছে সেটাকে তোমাকে যোগ বল দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। তো যেমন কোনো ছুঁচের মধ্যে কেরাসন তেল দিলে সে মরচে তার দূর হয়ে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায় ছুঁচ। তো ঠিক সেরকম তোমরা যত বাবার ইয়াদে থাকবে তত তোমাদের আত্মা পরিষ্কার হবে। আর তখন শিব বাবা যে সুপার ম্যাগনেট, যে চুম্বক, সে আত্মাকে আকর্ষণ করবে। বাবার প্রেমে সে আত্মা আকর্ষিত হবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমরা বাবার বাচ্চা তো হয়েছো, তোমাদের মরচে তো দূর হচ্ছে যোগ করে, কিন্তু আবার যদি তোমরা কোনো পরচিন্তন বা ঝকময় ফালতু কথা এসব যদি তোমরা বেশি করো তাহলে নতুন করে আত্মার মধ্যে আবার বিকর্মের মরচে লেগে যাবে। এর জন্যে আবার যদি সঙ্গম যুগে বাবার বাচ্চা হয়ে বিকর্ম করি তাহলে তার 100 গুণ বেশি শাস্তি পেতে হবে। তো বাবা বলছে আবার নতুন করে কোনো বিকর্ম করো না, খুব সাবধানে থাকো যে আমরা ফালতু কোনো পরনিন্দা পরচর্চা ঝকময়ির কথা তো আমরা বলছি না। তারপরে আজকে বাবা অনেকবারই এটা বলেছেন যে যারা মহান পুরুষ, যারা ঋষি মুনি সাধু সন্ত বা যারা সমাজকে কোনো নতুন দিশা দিয়েছেন, সমাজে কোনো ভালো পরিবর্তন করেছেন, তো সেই সব মহান পুরুষদের জন্যেই সরকার স্ট্যাম্প তৈরি করে। তো সবথেকে বড় কাজ, মহান কাজ তো শিব বাবা করেছেন, পুরো বিশ্বকেই পরিবর্তন করেছেন এবং মানুষকে দেবতা বানাচ্ছেন, এই কলিযুগকে শতযুগ বানাচ্ছেন, সকলের সদ্গতি করছেন, সকলকে মুক্তি, জীবন মুক্তির রাস্তা দেখাচ্ছেন। তাহলে সব থেকে আগে তো শিব বাবার স্ট্যাম্প হওয়া দরকার। তারপরে বাবা বলছেন যে সত্যযুগে তো সব থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ, সেখানে তো শিব বাবার পরিচয় থাকবে না, এজন্য সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের স্ট্যাম্প থাকবে। এভাবে বাবা আজকে অনেক কিছু ভালো ভালো পয়েন্ট আরও বলেছেন ড্রামার উপরে। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। বাবা বলছেন যে সবার আগে এই চিন্তাই করো যে আমি যে আত্মা, তার মধ্যে যে অনেক জন্মের যে বিকর্মের মরচে পড়ে আছে সেটা কি করে দূর হবে, কি করে ওটা পরিষ্কার হবে। তো যতক্ষণ ওই মরচেগুলো পরিষ্কার না হবে ততক্ষণ শিব বাবার ম্যাগনেট আমাদেরকে টানতে পারবে না, আকর্ষণ করতে পারবে না। তাই সে বিকর্মের মরচে সরাতে হবে। বাবা প্রশ্ন করছেন, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। বলছেন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে তোমাদেরকে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্যে কি একটা পুরুষার্থ করতে হবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचें, सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झकमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। बाबा बोलছেন যে সঙ্গম যুগে কর্মাতীত হওয়ারই পুরুষার্থ করতে হবে এবং বিশেষ অ্যাটেনশন যে কোনো কর্ম সম্বন্ধের দিকে তোমার বুদ্ধি যেন না যায়, আর কোনো কর্মবন্ধন যেন তোমাকে নিজের দিকে আকর্ষিত না করে। সারা কানেকশন একমাত্র বাবার সঙ্গেই রাখতে হবে, কারোর সঙ্গে তোমাদের দিল যেন না জুড়ে থাকে। তো এভাবে পুরুষার্থ করো, ফালতু ঝকমই মানে সাধারণ কথা, ব্যর্থ কথাতে নিজের সময় নষ্ট করো না এবং সারাদিন বাবার ইয়াদে থাকার অভ্যাস করো। আজকের মুরলির গান হচ্ছে
জাগ সজনিয়া জাগ। বাবা বলছেন জাগ সজনিয়া জাগ, নতুন যুগ এসেছে তোমার জন্যে। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। বাবা বলছেন যে পুরো জগতে একটাও মানুষ নেই যে आत्मार सटीक ज्ञान जाने। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। বাবা আজকাল প্রত্যেক দিন মুরলিতে প্রারম্ভেই আত্মা লেসন পড়াচ্ছেন যে তুমি দেহ নয়, তুমি আত্মা, পরমধাম নিবাসী। এখানে আমরা কর্মক্ষেত্রে কর্ম করতে এসেছি। तो अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा समझाते हैं। बाबा बोलছেন আমি डिटेल বোঝাচ্ছি না, কিন্তু होलसेल बाबा বোঝান। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नोंधा हुआ है। বাবা বলছেন যে বাবা হোলসেলে এত সুন্দর আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছেন যে সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত, সঙ্গম যুগ পর্যন্ত আমাদের কি কি পাঠ আছে আমরা সেটা ভালো করে বুঝে নিয়েছি। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। यह भी जानते हैं ऊंच ते ऊंच बाप है, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है तो जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। বাবা বলছেন যে 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 রাজাদের রাজত্ব চললো আর যে রাজা খুব ভালো মহান কাজ করলেন বা সমাজকে একটা নতুন দিশা দেখালেন বা কোনো সমাজের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন আনলেন, তো সেই রাজাদের বা সেই মহান পুরুষদের জন্যই তাদের স্মৃতিতে স্ট্যাম্প তৈরি হয়। तो अब शिव की जयंती भी मनाते हैं तो समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प मनानी चाहिए, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। বাবা বলছেন যে তোমরা সবাইকে জানাও যে সবথেকে বড় মহান কাজ তো শিব বাবা করছেন, যিনি কলিযুগকে সত্যযুগ বানাচ্ছেন, পতিত আত্মাকে পাবন বানাচ্ছেন, যিনি মনুষ্যকে দেবতা বানাচ্ছেন। তাহলে কার স্ট্যাম্প হওয়া দরকার? कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेज़ों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। तो बाबा কত ধরনের মহান পুরুষদের ব্যাখ্যা করলেন এখানে যে সাধু সন্তদের স্ট্যাম্প হয় বা কোনো শিখ ধর্মে বা মুসলমান ধর্মে বা ইংরেজ ধর্মে যারা কেউ বিশেষ মহান পুরুষ ছিলেন তাদের নামে স্ট্যাম্প হয় বা কোনো ফিলোসফার যদি কেউ ভালো থাকে তার জন্য স্ট্যাম্প হয়। तो जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। বলছেন মহারানা প্রতাপেরও স্ট্যাম্প হলো। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की। बाबा বলছেন স্ট্যাম্প তো হওয়া দরকার একমাত্র শিব বাবার, जो सबका सद्गति दाता है। इस समय बाप न आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं।
বাবা বলছেন এখন যদি বাবা না আসেন কলিযুগে তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষের কি করে সদ্গতি হতো। তো বাবাই তো এসে সকলের সদ্গতি করছেন না। तो सबसे ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना, तो बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच ते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच ते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। বলছেন ভারতবাসীরা তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার কারণে এটাও বুঝতে পারছে না যে শিব কে আর আমরা কার পুজো করি। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई ना। বলছেন রানা প্রতাপ কে অনেক বীর পুরুষ বলা হয় বা মহান পুরুষ বলা হয়, কিন্তু উনিও তো হিংসা করেছেন, মানে হিংস্র যুদ্ধ করেছেন। তো এটাও তো হিংসা, কিন্তু দেবী দেবতারা তো ডবল অহিংসক। इस समय तो सब हैं डबल हिंसक। বলছেন কোথায় সত্যযুগে দেবী দেবতারা ডবল অহিংসক, আর এখন দাপর কলিতে মানুষ একদম ডবল হিংসক, বিকারেও যাচ্ছে আবার অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধও করছে। तो विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। बाबा বলছেন যে সত্যযুগে स्टैंप বেরোচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণের। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। बाबा সত্যযুগের দর্শন করাচ্ছেন যে যেহেতু সেখানে শিব বাবার পরিচয় থাকবে না, এই জন্যে ওখানে যদি স্বর্ণ মুদ্রা হয় বা কোনো কিছু বিশেষ রাজকীয় কোনো চিহ্ন যদি থাকে, তাহলে সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণেরই सिंबल থাকবে। तो शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। तो ऊंच ते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव। বলছেন সব থেকে উঁচু হচ্ছে शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा বলছেন যে ভারতবর্ষকে অবিনাশী রাজ সত্তা কে দিচ্ছেন? শিব বাবা। ভারতবর্ষকে স্বর্গ বানাচ্ছেন শিব বাবা, তাই ভারতবর্ষে মেন স্ট্যাম্প শিব বাবারই হওয়া দরকার। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। বাবা বলছেন পুরো রচয়িতা রচনার নলেজ বাবা ছাড়া আর কারো মধ্যেই নেই। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। তো বাবা বলছেন যে পুরুষার্থ করে তুমি নিজের উপরে নিজে রহম করো, নিজের উপরে নিজেই তুমি কৃপা করো। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे,
यह तो बहुत बड़ी ইউনিভার্সিটি है। বাবা বলছেন যে শুধু পাঠশালা নয়, এটাকে বলা হবে বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটি, যেখানে সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য বাবা এই জ্ঞান দিচ্ছেন। तो बाकी तो सब है झूठे नाम, वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। বলছেন বাকি যে ইউনিভার্সিটি আছে তা সেখানে পুরো ইউনিভার্সের কল্যাণ হয় না, কিন্তু বাবা এখানে যে ইউনিভার্সিটি খুলেছেন গডলি ইউনিভার্সিটি, এখানে পুরো বিশ্বের কল্যাণ হচ্ছে, বিশ্বের সদ্গতি হচ্ছে, বিশ্বের আত্মাদের উদ্ধার হচ্ছে। তো আসলে এটাই হচ্ছে वास्तविक यूनिवर्सिटी। तो इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते डरो नहीं। बाबू से भय पेओ ना, यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। बाबा बोलছেন যে আর কোনো ধর্মে শুরু থেকে রাজতন্ত্র স্থাপন হয় না, আগে তাদের ধর্ম স্থাপন হয়, তারপরে রাজতন্ত্র স্থাপন হয়। যখন ধর্মের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায়, মানে তাদের যে ধর্মের শিষ্যরা অনেক বেড়ে যায়, তখন তাদের রাজতন্ত্র স্থাপন হয়। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। तो यह भी समझाने की बात है, दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा दैवी राजधानी এই पुरुषोत्तम संगम युगे स्थापन করছেন। बाबा ने समझाया है, कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। बाबा বলছেন যে তোমরা যেখানে সেবায় যাচ্ছ সেখানে কৃষ্ণ বা নারায়ণ বা রাম এদের চিত্র হাতে নিয়ে যাও আর সবাইকে বোঝাও যে এদের চিত্রকে কালো কেন দেখানো হয়েছে বা কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর কেন বলা হয়। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं, भारत ही हेविन था अब हेल है, हेल अर्थार्थ काला, हेविन अर्थार्थ गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है, तो तुम समझा सकते हो कि देवताओं को काला क्यों बनाया है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। বলছেন এখন দেবতারা নাই, এখন তোমরা আছো, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। বলছে এখন তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হয়নি, এই জন্যে বিভিন্ন কর্ম সম্বন্ধের সঙ্গে তোমাদের দিল জুড়ে আছে। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। বলছে তোমরা বাবার সঙ্গে যত ভালোবেসে তোমরা যোগ লাগাবে তত বাবার প্রতি ভালোবাসা তোমাদের বাড়বে। अहो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है, माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश वह खुशी रहनी चाहिए ना। বলছে তোমরা
জানো যে আমি আত্মা শিব বাবার সঙ্গে কথা বলছি বা শিব বাবা আমার সঙ্গে কথা বলছে, तो তোমার কত খুশি হওয়া উচিত। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। বলছে যে ছুঁচের মধ্যে একটু মরচে থাকবে না, তো সেই ছুঁচকে যদি চুম্বকের সামনে রাখা হয় তাহলে ফট করে সে টেনে নেবে। थोड़ी भी कट होगी तो छटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी, जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। বলছে যেখানে মরচে থাকবে না আবার চুম্বক সেদিক থেকে টানবে। तो बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। तो हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। বলছে তোমরা এটা অনুভব করতে পারো কি যত আমার আত্মার থেকে মলিনতা বিকারের মলিনতা दूर হবে तो बाबार आकर्षण बाढ़े। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। বলছেন বাবাকে याद करते करते विकर्म तो विनाश हবেই, কিন্তু যদি আবার নতুন করে কোনো পাপ করে ফেলছো তাহলে 100 गुना दंड हो जावे। कट चढ़ जाती है याद नहीं कर सकते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। বলছে যত তোমার মরছে দূর হয়ে যাবে তত তোমার বাবার প্রতি ভালোবাসা টান আরও বাড়বে আর তোমার ভিতরে প্রচণ্ড খুশি থাকবে। চেহারা খুশনুমা रहेगा, চেহারা সব সময় হাসি হাসি মুখে থাকবে। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। বলছে যারা বাবার সেবা করবে না তাহলে কি করবে, সারাদিন মুখ থেকে ব্যর্থ কথা ফালতু কথাই বলবে। तो बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। যেটুকু আত্মার মধ্যে ব্রাইটনেস ছিল সেটাও মানে শেষ হয়ে যায়। तो बाप से जरा भी लव नहीं रहता, लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में रहता है। মানে যে সারাদিন যোগেও থাকে আর বাবার খুব ভালো সেবা করে তো বাবার দৃষ্টি সেই বাচ্চাদের উপরে থাকে। तो बाप का प्यार उन पर रहता है, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ, अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते चाट रखो तो कट उतर जाएगी। আবার বাবা বলছেন बच्चे চাট রাখো তাহলে তোমার মলিনতা দূর হবে। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना, तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती है। বলছে অনেক পুরুষার্থ করেছো তখন সে মরচে একদম হালকা হয়ে যায়, আবার কোনো রকম বিকর্ম করে ফেলছো তো আবার মরচে লেগে যাচ্ছে। तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकते, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता पद भी भ्रष्ट हो जाता, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। বলছে এমন কোনো কাজ করো না যাতে তোমার आत्मार मध्य आबार नतून करे मोर्चे पड़ जाक। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो, ख्याल नहीं करते हैं
तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। বাবা বলছেন সব থেকে ভালো ক্যারেক্টার, সব থেকে ভালো দেবী গুণ, সব থেকে সুন্দর ম্যানার্স হচ্ছেন লক্ষ্মী নারায়ণের। তো তাই এখন কলিযুগের মানুষ বা দাপুর যুগের মানুষরা লক্ষ্মী নারায়ণের সামনে এই গান করে যে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন, 16 কলায় সম্পূর্ণ, আমরা অধম পাপী नीच। तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठें तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं। বলছেন যে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরা মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে সেখানে বসে। তো বলছে তার থেকে তো ভালো তোমরা গঙ্গার মধ্যে বসে যাও, তো গঙ্গার জলে শরীর তো শুদ্ধ হবে। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। বলছে মানুষ শান্তির জন্য এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, তো বলছে আসল শান্তি তো তোমরা তখন পাবে যখন সব আত্মা परम धाम चले जावे। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे। বলছেন যারা मेहनत করবে তারাই राज्य করবে, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। বলছে শুরুতে বাবা দাদিদেরকে সাক্ষাৎকার করিয়েছেন যে ভুল করলে কি কি শাস্তি হবে, তো সেরকম अंतिम समय तो साक्षात्कार करावे। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। বলছে যেমন লোহাকে বা ছুঁচকে যদি কেরোসিন তেলে দেওয়া হয় তাহলে কি হয়, তার মূর্ছে দূর হয়ে যায়। তো ঠিক সেরকম বাবার ইয়াদে আমরা যত থাকবো তত আমাদের আত্মার মধ্যে যে জঙ্ক পড়ে গেছে, মূর্ছে পড়ে গেছে, সেটা পরিষ্কার হবে। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। বলছে তুমি যে কোনো দেহধারীর সঙ্গে যখন প্রীত লাগাচ্ছ, তো যে দেহধারীর সঙ্গে তোমার মন জুড়ে গেছে তো সে তো বিকারে পরিপূর্ণ, তো তার সঙ্গ করে তোমার কতটা কল্যাণ হবে। আর বাবা তো পরম পবিত্র, তো বাবার সঙ্গ করলে তোমার আত্মার কত উন্নতি হবে, কত কল্যাণ হবে। তো বাবা বলছে যে এইভাবে বাবার সঙ্গ ছেড়ে, সত্যের সঙ্গ ছেড়ে তুমি আর কোনো অসতের সঙ্গে যেও না। तो जंक खाई हुई चीज के संग में उनके भी कट चढ़ जाएगी। बाबा বলছেন যে তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপরেও মরচে আরো বেশি পড়ে যাবে। तो कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है।
বাবা বলছেন দাপর যুগ থেকে তোমার উপরে খুব জোরে মোর্চে পড়তে शुरू हो जाए। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो, बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी, नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। বলছে সত্যযুগে দেবী দেবতাদের খুব ছোট দেবী বৃক্ষ হবে, মানে বৃক্ষটা খুব ছোট হবে, ধীরে ধীরে এটা বৃদ্ধিকে পাচ্ছে। तो यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। বলছেন যে অন্য ধর্মের আত্মারা তারা তো পরমধাম থেকে ডাইরেক্ট নিচে নামছে, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণ ধর্মের আত্মারা পরমধাম থেকে আসছে না, তারা আগে কলিযুগে শূদ্রকুলে ছিল, সেখান থেকে তারা পুরো তমপ্রধান অবস্থা থেকে এখন সঙ্গম যুগে বাবার বাচ্চা হয়ে ব্রহ্মা কুমার কুমারী হয়ে এখান থেকে পুরুষার্থ করে তারপরে সত্যযুগে যাবে। তো সঙ্গম যুগে কোনো পরমধাম থেকে নতুন আত্মা আসছে না, মানে ब्राह्मण कुलेर आत्मा परमधाम থেকে আসছে না। तो यहाँ तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकता कर जीते जी सब कुछ ख़त्म करके आते हैं। বাবা বলছেন যে পরমধামে যখন তোমরা আসবে তখন পুরো 84 জন্মের হিসাব কিতাব চুক্ত করে একদম সব শেষ করে আসে। सन्यासी भी संन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। বলছে সন্ন্যাসীরাও যেমন সন্ন্যাস যখন করে তো 2-3 বছর মধ্যে তাদের পুরনো কথা, বাড়ির কথা, পরিবারের কথা তো মনে পড়ে, তারা তো ভুলতে পারে না। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करते हैं। पवित्र जरूर बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। বলছেন ব্রাহ্মণ কুলেরই যদি আত্মা না হয় তাহলে সে দেবতা কুলে কি করে আসবে। बहुत सहज पॉइंट दी जाती है जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। বলছে বিনাশ কালে যাদের বাবার সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধি হবে তাদের তো विनाश अवश्य होवे। बहुत सहज पॉइंट दी जाती है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी तो सतयुग में थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो पंचायती राज्य है। বলছে এখন তো पंचायती राज्य माना प्रजा राजत्व प्रजार उपरे। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तब कोई को तीर लगे। বলছে তোমরা তো সবাইকে জ্ঞান বোঝাচ্ছ, কিন্তু যে আত্মার মোর্চে হয়তো অনেকটা দূর হয়ে গেছে, পরিষ্কার হয়ে আছে, সেই বাবার জ্ঞানকে আরও সহজভাবে নিতে পারবে। अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। বাবা বলছেন নিজের চরিত্র দেখো যে আমি সারাদিন কি করি। किचन में भी भोजन बनाते रोटी पकाते जितना हो सके याद में रहो। বলছে রান্নাঘরেও তুমি যখন রান্না করছো বা রুটি বানাচ্ছো তখনও বাবার यादे থাকো। घूमने जाते हो तो भी याद में, बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झकमुई करते रहते हैं, फिर कट और ही चढ़ जाती है, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। বলছে পরচিন্তনের কোনো কথাই শোনো না। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। বলছে পড়া আর শ্রীমতের উপরে পুরো ধ্যান দিতে হবে, নিজের ক্যারেক্টার ঠিক রাখতে হবে আর নিজের উপরে নিজে রহম করতে হবে, কৃপা করতে হবে। তারপরে 2 নম্বর পয়েंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। বলছে নিজেদের মধ্যে পুরনো কোনো ফালতু পরচিন্তনের কথা বলে बाबा থেকে बुद्धियोग कारो भेंगे दियो ना। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, कोनो रकम पाप कर्म करो ना, याद में रहकर जंक उतारनी है। आज के वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। बाबा बोलছেন सब থেকে বড় दासी হচ্ছে प्रकृति। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। বলছেন যে বাচ্চারা প্রকৃতি জিত হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করে নিয়েছেন, তাদের অর্ডার প্রমাণ সমস্ত শক্তি কাজ করে এবং প্রকৃতিও তাদের দাসী হয়ে কাজ করে। अर्थात समय पर सहयोग देती है, लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। बाबा बोलছেন যদি প্রকৃতি জিত হওয়ার পরিবর্তে আলবেলাপনের নিদ্রায় যদি আমরা ঘুমিয়ে থাকি বা যে কোনো অল্প ক্ষণিক যে প্রাপ্তি হয়েছে তার অহংকারে যদি আমরা চুর হয়ে থাকি বা কোনো ব্যর্থ সংকল্পের নৃত্য করতে থাকি, তাহলে এইভাবে সময় নষ্ট করলে ঈশ্বরীয় শক্তি বা আমাদের ভিতরে যে আত্মার ভিতরে অষ্টশক্তি আছে সেটা অর্ডার অনুসারে কাজ করবে না। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। इसलिए बाबा बोलছে যে চেক করো যে সংকল্প শক্তি, निर्णय शक्ति और संस्कारेर शक्ति तीनटेই তোমার ऑर्डरे আছে। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। বলছে বাপ দাদার গুণ গাইতে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরাই গুণমূরত হয়ে যাবে। ওম শান্তি।